तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, चैप्टर नंबर है हमारा 8 और नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है वो कंसिडर किया जाता था एज अ स्टेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स. This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserting. It was thought that the person with black bile belonged to hot personality and would have fever. This idea was arrived at by pure reflective thoughts. The discovery of the blood circulation का discovery by William Harvey, using experimental method and domestication of the normal body temperature in the person with the black bile using the thermometer disproved the good humor hypothesis for health. In later years, biology stated that mind influenced through neural system and endocrine system our immune system, and that our immune system maintains our health. Hence, mind and mental state can affect our health. Of course, health जो होती है वो affect होती है by genetic disorder, यानी deficiencies with which a child is born, and deficiency or defects which the child inherits from the parent or from birth. दूसरा जो है इन्फेक्शन से भी अफेक्ट होती है हेल्थ. तीसरा लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड द वाटर वी टेक, द रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी, हैबिटेट्स वी हैव और लैक. ठीक है, द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी. हाउ डू वी डिफाइन इट? Health does not simply means absence of disease or physical fitness. It could be defined as state of complete physical, mental, and social well-being. When people are healthy, they are more efficient at work. This increases the productivity and brings economic prosperity. लेके आते हैं. Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. Balanced diet, personal hygiene, and regular exercise are very important to maintain a good health. Yoga have been practiced since time immemorial to achieve the physical and mental health. Awareness about diseases and their effects on the different bodily functions. Vaccination and immunization against infectious disease, proper disposal of waste, control of the vectors, and maintenance of the hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. When functioning of one or more organs or system of the body is adversely affected, characterized by appearance of the various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is, we have a disease. Disease can be broadly grouped into infectious and non-infectious. Disease which are easily transmitted from one person to another are called infectious disease. Infectious diseases are very common and where every one of us suffer from these at times, sometimes, and others. Some of the infectious diseases like AIDS are fatal. Among non-infectious disease, cancer is the major cause of death. Drug and alcohol abuse also affect करते हैं हमारी हेल्थ को एडवर्सली. अब बात करते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस में. तो वाइड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्ट्स एक्सेट्रा कुड कॉज कर सकते हैं डिजीज इन मैन. सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस. Most parasites are therefore pathogens होते हैं as they cause harm to the host by living in or on them. The pathogens can enter our body by various means, multiply कर सकते हैं और interfere कर सकते हैं with the normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. Pathogens have to adapt to life within the environment of the host. For example, pathogens that enter the gut must know our way of surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes. A few representative members from different group of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. Salmonella typhi is a pathogenic bacterium है जो कि कॉज करता है टाइफॉइड फीवर इन द ह्यूमन बीइंग. These pathogens जो होता है वो जनरली एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द फूड एंड द वाटर कंटामिनेटेड विद दैम एंड माइग्रेट कर जाता है टू अदर ऑर्गन्स थ्रू फूड. ठीक है. सस्टेन्ड हाई फीवर यानी कि 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस,
स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट जो है सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स है डिजीज़ के। इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ जो होती है वो अकर कर सकते हैं इन सीवियर केसेस में, ठीक है। टाइफाइड फीवर जो है वो कुड बी कन्फाइम्ड बाय वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट से जो है हम जो है टाइफाइड फीवर को कंफर्म कर सकते हैं। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन डेट ऑफ द मैरी मेलन, जिसका निकनेम है टाइफाइड मैरी, इज वर्थ मेंशनिंग हियर। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे टाइफाइड का केस खत्म हो गया। नेक्स्ट हम जो लोग हैं बात करते हैं बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करें और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिजीज़ निमोनिया इन द ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द जो कि इन्फेक्ट करती है एल्वोलाई यानी कि एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्फेक्शन तो हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिजीज़ निमोनिया ह्यूमंस में, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करती है एल्वोलाई यानी एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्फेक्शन द alveoli get filled with the fluid leading to the severe problem in respiration. The symptoms of the pneumonia include करता है fever, chills, cough and headache. In severe cases, the lips and fingernails may turn grey to bluish in color. A healthy person जो होता है वो acquire करता है infection by inhaling the droplets or aerosol released by infected person or even by sharing glasses and utensils with the infected person. Dysentery, plague and diphtheria (DPD), dysentery, plague, diphtheria, DPD are some of the other bacterial diseases in men. Many viruses also cause करते हैं disease in humans. बहुत सारे वायरस भी जो होते हैं disease cause करते हैं humans में, जैसे कि राइनो वायरस जो होता है रिप्रेजेंट करता है वन सच ग्रुप। राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस जो कि cause करता है वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन अलाइंड द कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, ठीक है। नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, लंग्स को नहीं करता है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजुगेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा विच यूजुअली जो कि लास्ट करता है 3 to 7 days तक। Droplets resulting from the cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cup, doorknobs, computer keyboards or mouse etc. and cause कर सकता है infection in a healthy person. Some of the human disease are caused by protozoans too. Protozoan से भी जो है कुछ human disease cause होती है. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium एक tiny protozoan जो होता है वो responsible होता है for this disease. Different species of the Plasmodium यानी Plasmodium vivax, Plasmodium malaria and Plasmodium falciparum जो होता है responsible होता है for the different types of the malaria. Of these, malignant malaria जो कि caused होता है by the Plasmodium falciparum जो होता है most serious one होता है और even fatal भी हो सकता है. Let us take a glance at the life cycle of the Plasmodium. Plasmodium जो होता है वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में एज ए स्पोरोजोइड यानी इन्फेक्शियस फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. द पैरासाइट इनिशियली जो होता है मल्टीप्लाई करता है विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक करता है RBC रिजल्टिंग इन देयर रप्चर. The rupture of the RBC is associated with the release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the chill and high fever reoccurring every 3 to 4 days. When a female anopheles mosquito जो होता है बाइट करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन को, these parasite जो होता है एंटर कर जाता है mosquito's body and undergo further development. The parasite multiply within them to form the sporozoite that are stored in the salivary gland. When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malaria parasite जो है require 2 hosts, human and mosquito, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is a vector transmitting agent too. ठीक है, यहाँ पे हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं.
तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब मॉस्किटो जो होता है बाइट करता है अनदर ह्यूमन्स को, एक ह्यूमन को बाइट करता है, तब क्या होता है, स्पोरोजोइड जो होता है वो इंजेक्ट हो जाते हैं विद द बाइट के साथ इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है पैरासाइट्स यानी स्पोरोजोइड जो होता है वो रीच कर जाते हैं लीवर थ्रू द ब्लड के थ्रू जो है किस में चले जाते हैं, लीवर में, ये लीवर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो है द पैरासाइट रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली इन द लीवर सेल में एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ब्रस्टिंग द सेल को बस्ट करवा देता है एंड रिलीज हो जाता है इनटू द ब्लड में रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर जो है पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल इन द आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, हाँ। तो पैरासाइट जो होता है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली इन द आरबीसी, बस्ट कर देता है आरबीसी को भी एंड कोज करता है साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज पैरासाइट जो होता है इन्फेक्ट करता है न्यू आरबीसी को, ठीक है। फिर जो है ये जो है सेक्सुअल स्टेजेस यानी कि गेमेटोसाइट जो होता है वो जो कि डेवलप्ड है इन रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल में जो है सेक्सुअल स्टेजेस यानी गेमेटोसाइट जो होता है वो डेवलप हो जाता है इन आरबीसी, ठीक है। ये सब जो जितना भी बोला ये किस में होता है, ह्यूमन होस्ट में होता है, ठीक है। फिर ये गेमेटोसाइट्स होते हैं, फीमेल मॉस्किटो जो होता है टेक अप द गेमेटोसाइट को ले लेता है विद द ब्लड मील, ठीक है, ले लेता है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो टेक प्लेस होता है इन द मॉस्किटो की गट में। मॉस्किटो की गट में जो होता है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट का डेवलपमेंट हो जाता है किसका, प्रोटोजोन का, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज यानी कि स्पोरोजोइड जो होता है एस्केप कर जाता है फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड में चल जाते हैं, ठीक है। ये स्लाइवरी ग्लैंड है, ये स्पोरोजोइड्स है, ठीक है। समझ में आ गया। ये हमारी जो है लाइफ साइकिल थी जो कि डायग्राम के थ्रू दिखा रखी थी। नेक्स्ट हम बात करें तो एंटमीबा जो हिस्टोलिका है वो भी एक प्रोटोजोन पैरासाइट है इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस, जो कि कोज करता है एम्बोएसिस कोज करता है यानी कि एम्बोइक डिसेंट्री कोज करता है। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ जो होता है इंक्लूड करता है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। इस डिजीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो वो होता है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। हाउस फ्लाई जो होता है वो एक्ट करता है एज ए मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करता है एंड सर्व करता है टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, देयर बाय कंटामिनेटिंग दैम। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। किसमें, एमोइबिक डिसेंट्री में यानी एमोइबिसियस में, एमोइबियासिस में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एस्केरिस, द कॉमन राउंड वॉर्म और वुचेरिया द फिलेरियर वॉर्म आर सम ऑफ द हेलमिंथ है जो कि विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक होते हैं मैन के लिए, ठीक है। एस्केरिस जो है एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि कोज करते हैं एस्केरियासिस। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ जो होता है वो इंक्लूड करता है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनेमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। सिम्टम जो होता है वो इंक्लूड करता है इंटरनल ब्लीडिंग, muscular pain, fever, anemia and blockage of the intestinal passage. The egg of the parasite are excreted along with the feces of the infected person with contaminated which जो कि contaminate कर देता है soil, water, plant etc. को। A healthy person जो होता है वो acquire करता है this infection through contaminated water, vegetable, fruits etc. ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी और वुचेरिया मलाई, ठीक है। द फिलेरियर वर्म्स होते हैं जो कि कोज करते हैं स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑफन अफेक्टेड हो जाते हैं इसमें, रिजल्टिंग इन अ ग्रोस डिफॉर्मिटीज़ करते हैं, ठीक है। The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of the female mosquito vector, कि बाइट से जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है शोइंग इन्फ्लामेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस की जो है वो कितना इन्फ्लामेशन होता है वो दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मैनी फंजाई जो कि बिलोंग करती है टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम
ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिंगवॉर्म। मैनी फंजाई जो कि बिलोंग करते हैं जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिंगवॉर्म विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। ठीक है। appearance of dry scaly lesions on various part of the body such as skin, nails and scalp are the main symptom होता है इस disease का। These lesions जो होते हैं accompanied होते हैं by intense itching, heat and moisture जो होता है help करता है these fungi to grow which make them thrive in skin folds such as those in groin and या फिर or between the toes। Ringworm are generally acquired होता है from the soil or by using towels, cloth or even the comb of the infected individual। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल और एंड पब्लिक हाइजीन जो होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड करता है कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। पब्लिक हाइजीन जो होता है वो इंक्लूड करता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वॉयर्स, पूल्स, cesspools and tanks, and observing the standard practice of hygiene in public gatherings। These measures जो होते हैं particularly essential होता है where the infectious agent are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and escherichiasis। In case of airborne disease की बात करें जैसे कि निमोनिया और कॉमन कोल्ड की बात करें, in addition to above measures जो है इनके अलावा जो है क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और द बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर डिजीज सच एज मलेरिया और फिलेरियासिस की बात करें जो कि ट्रांसमिट होती है थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। This can be achieved by avoiding stagnation of the water in and around residential areas, regular cleaning of the household coolers, or use of the mosquito nets, introducing fishes like gambusia in the ponds that feed on the mosquito larvae, spraying of the insecticides in ditches, drainage area and swamps, etc. In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of the mosquito। Such precaution जो है become more important especially in the light of the recent widespread incidences of the vector-borne Aedes mosquito disease like dengue, chikungunya in many part of the India। यानी कि ACDC याद रखना है। एडीज मॉस्किटो से कौन सी डिजीज़ कोज होती है? डेंगू एंड चिकनगुनिया। ADC एडीज मॉस्किटो से डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है। एडवांसमेंट मेड इन द बायोलॉजिकल साइंस में जो एडवांसमेंट की गई है have armed us to effectively deal with the infectious disease। The use of the vaccine and immunization program have enabled us to completely eradicate the deadly disease like smallpox, a small number of the other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus। DPTP याद रखना है। DPTP, D से डिप्थीरिया, P से पोलियो, T से जो है टेटनस, P से निमोनिया। DPTP, D से डिप्थीरिया, T से डिप्थीरिया, T से DP यानी D से डिप्थीरिया, P से पोलियो, DPTP, T से टेटनस, P से निमोनिया। ठीक है। सबसे पहले D से डिप्थीरिया, P से पोलियो, फिर T से जो है टेटनस, फिर D से जो है फिर से जो है P से हमारे पास है निमोनिया। ठीक है। हैज़ बीन कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट बाई द यूज़ ऑफ द वैक्सीन से। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ एट द वर्च है ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैव ऑल्सो enabled us to effectively treat infectious disease। हाँ जी, तो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। तो एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट इन अ डिजीज़। क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी इज एबल टू डिफेंड itself from most of these foreign agents। This overall ability of the host to fight the disease-causing organism conferred by immune system is called immunity। Immunity जो होती है वो दो टाइप की होती है, innate immunity और acquired immunity।
सबसे पहले बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ. It is accomplished by providing different types of the barrier to the entry of the foreign agents into our body. Innate immunity जो होता है वो कंसिस्ट करता है 4 types of the barrier. These are सबसे पहले physical barrier. Skin on our body is the main barrier which prevent the entry of the microorganism. Mucous coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbes entering our body. Next are physiological barriers. Acid in the stomach, saliva in the mouth, tears from the eyes all prevent करता है microbial growth. Next है cellular barrier. Certain type of the leukocytes यानी WBC of our body like polymorphonucleoleucocytes and monocytes and natural killer जो कि type of lymphocyte होते हैं in the blood as well as microphages in the tissue can phagocytose कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं माइक्रोब्स को. ठीक है. साइटोकाइन बैरियर की बात करें तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है साइटोकाइन बैरियर्स. तो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होता है वो सिक्रेट करते हैं प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरेंस जो कि प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. Acquired immunity on the other hand is pathogen specific होता है. It is characterized by memory. This means when our body encounters the pathogen for the first time, it produces a response called primary response, which is of low intensity. Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have the memory of the first encounter. The primary and secondary immune responses are carried out with the help of the two special type of lymphocytes present in our blood, that is B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes होता है प्रोड्यूस करते हैं एक आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इन टू आवर ब्लड टू फाइट विद दैम. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. द टी सेल जो होता है डेमसेल्फ डोंट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प करता है बी सेल को टू प्रोड्यूस दैम. ईच एंटीबॉडी मोलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल लाइट चेन्स, 2 लॉन्गर हैवी चेन्स. हैंस एंटीबॉडी को जो होता है रिप्रेजेंट किया जाता है H2L2 से. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज जो है आर प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी में जो है डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं. IgA, IgM, IgE, IgG. ठीक है. गम दे. ठीक है. 5 एंटीबॉडी याद रखनी है. गम दे. ठीक है. कार्टून ऑफ द एंटीबॉडी जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है ऊपर फिगर में देख लेते हैं. ठीक है. ये जो है एंटीबॉडी का कार्टून है. ठीक है. देखो यहाँ पे 2 हैवी चेन होते हैं यानी कि ये वाली बड़ी वाली, 2 स्मॉल लाइट चेन्स होती है ये वाली. ठीक है. इनको लाइट चेन्स बोलते हैं और इनको जो है हैवी चेन बोलते हैं. ठीक है. जो ये आगे होता है ये आगे वाला जो स्टार्टिंग में होता है इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं CN. ठीक है. यहाँ पे भी सल्फाइड बॉन्ड होता है, सल्फाइड बॉन्ड होता है, सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड. यहाँ पे एक सल्फाइड बॉन्ड, 2 इधर की साइड, 2 इधर की साइड. ठीक है. और फिर एक बीच में, 2 यहाँ पे आएंगे, 2 अंदर की साइड, फिर से 2 अंदर की साइड. ठीक है. ये जो है हमारा एंटीबॉडी का मोलिक्यूल बनता है. ये जो होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है. ठीक है. समझ में आ गया. ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर रहे थे हाँ बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ द आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड. द सेकेंड जो होता है इज़ द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको बोला जाता है. द टी लिम्फोसाइट जो होता है वो मीडिएट करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को. वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी जो होता है वो फेल कर देता है टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली. ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ओनली रेमेडी होता है टू अनेबल दीज पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. ठीक है. देन अ सर्च बिगिंस टू फाइंड अ सुटेबल डोनर. Graft from just any source, an animal, another primates or any human being cannot be made since graft would be rejected sooner or later. Tissue matching, blood group matching are essential for undertaking any graft here transplant, and even after this patient has to take immunosuppressant all his or her life.
द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ और नॉन सेल्फ एंड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो रिस्पॉन्स होती सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की। मैंने होस्ट जो होता है वो एक्सपोज होता है टू द एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग या फिर डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द होस्ट बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो स्लो होता है और टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलाइबरेटरी ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इन टू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस करता है एक्टिव इम्यूनिटी को। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, येलो फ्लूइड कोलेस्ट्रम जो कि सिक्रेटेड होता है बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन हैज़, उसमें जो होता है अबंडेंट में एंटीबॉडीज होती है IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेक्ट। द फोइटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम their mother through the placenta during pregnancy. These are some of the example of passive immunity. Next है vaccination and immunization. ठीक है, the principle of immunization vaccination जो होता है वो based होता है on the property of the memory of the immune response पर based होता है। In vaccination preparation of the antigenic protein का जो है preparation in vaccination preparation of the antigenic protein of pathogen और inactivated या weakened pathogen यानी कि वैक्सीन are introduced किया जाता है into the body. The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agent during actual infection. The vaccines also generate करता है memory B and T cell that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invader with the massive production of the antibodies. If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response जो होता है वो required होता है, जैसे कि टेटनस में, we need to directly inject the perform antibodies or antitoxin. A preparation antitoxin मतलब a preparation containing antibodies to the toxin. Even in cases बात करें, even in cases of snake bites, the injection which is given to the patient contain perform antibodies against snake venom. This type of immunization को बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो है उसने अलाउ किया है द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। वैक्सीन्स प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अलाउ करता है एंड हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर द इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस B वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एलर्जी। व्हेन अब हम जो है बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। ठीक है, तो एलर्जी व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेसेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग विजिंग फॉर नो एक्सप्लेन्ड रीजन and when you went away your symptoms disappeared. Does this happen to you? Some of us are sensitive to some particle in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to the pollen, mites, etc., which are different in different places. ठीक है, the exaggerated response of the immune system. ठीक है, exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. The substance to which such an immune response is produced are called allergens. The antibody produced to these are of IgE type होता है। ठीक है, the common example of the allergens are mites in dust, pollens, animal dander, etc. Symptom of the allergic reactions include करता है sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing. Allergy is due to release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell. For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with small doses of the possible allergens and the reaction study. The use of the drugs like antihistamine, adrenaline or steroids quickly reduce कर देते हैं symptoms of allergy. Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of the immunity and more sensitive to the allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. They could be because of the protected environment provided early in the life. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की।
Memory based acquired immunity evolved in the higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organism pathogen from the self cell. While we still do not understand the basis of this, two calories of this ability have to be understood. वन, हाइयर वर्टिब्रेट्स होते हैं कैन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉरेन मोलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म को. मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी जो होता है वो डील करता है विद दिस एस्पेक्ट. टू, द समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीज़न की वजह से बॉडी जो होता है अटैक कर देती है सेल को. दिस रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज. Rheumatoid arthritis which affect many people in our society is ऑटो इम्यून डिजीज होती है. ठीक है. नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. बॉडी में इम्यून सिस्टम. द ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स एंड सोल्यूबल molecules like antibodies. As you have read, the immune system is unique in the sense that it recognize कर लेता है foreign antigen, respond करता है to these and remember them. Immune system also play an important role in the allergic reactions, autoimmune disease and organ transplantation. Lymphoid organs की बात करें, these are the organs where origin or maturation and proliferation of lymphocytes जो होता है occur होते हैं. The primary lymphoid organ are bone marrow and thymus, where immature lymphocyte जो होता है वो differentiate कर जाता है into antigen sensitive lymphocyte. Antigen sensitive lymphocytes में after maturation the lymphocytes migrate to the secondary lymphoid organ like spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of the small intestine and appendix. The secondary lymphoid organ जो होता है प्रोवाइड करता है site for the interaction of the lymphocyte with the antigen, which then proliferate कर जाता है to become effector cell. The location of the various lymphoid organ जो होता है वो शो कर रखी हैं ह्यूमन बॉडी में. The bone marrow is the main lymphoid organ होता है where all the blood cell including lymphocyte जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. The thymus is a lobed organ होता है जो कि लोकेटेड होते हैं near the heart beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of the birth but keeps reducing in size with the age, and by the time puberty is attained it reduces to a very small size. Both bone marrow and thymus जो होता है प्रोवाइड करता है माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट. द स्प्लीन जो होता है वो एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है. इट मेनली कंटेन करता है लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट्स. It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has a large reservoir of erythrocytes. ठीक है. हम बात कर रहे थे हाँ लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ नोड जो होता है वो सर्व करते हैं टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन which happen to get into the lymph and tissue fluids. Antigen trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of the lymphocytes present there and cause the immune response. There is a lymphoid tissue also located within the lining of the major tract, respiratory, digestive and urogenital tract, जिसको हम क्या बोलते हैं mucosa associated lymphoid tissue. It constitute about 50% of the lymphoid tissue in the human body. ठीक है. एक ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है लिम्फ नोड्स का. ठीक है. तो ये जो है नीचे जो है लिम्फेटिक वेसल्स दिखा रखी है, ये थाइमस दिखा रखा है और ये जो है लिम्फ ब्लू जो है लिम्फ नोड्स है. ठीक है.